Good morning, students. Today we will study the fifth chapter of microeconomics. This book is of T.R. Jain and V.K. Ohri. So, the fifth chapter of the book is Theory of Demand. We have already completed the last one chapter, and today we will start the next chapter, that is Theory of Demand, chapter number 5. The content of the chapter, you write the content of the chapter, that is meaning and definition of demand. The second topic which will be cover, that is determinants of demand. Then you write the demand schedule, demand curve and its slope, law of demand, change in quantity demand and change in demand, cost price effects, how price of related goods affect demands for a commodity, relationship between income and demand, impact of taste and preferences on demand for a commodity. So first you write the content of the chapter name, mention day and date, and write the content of the chapter. Today we will cover the topic demand and the determinants of demand. So first one is definition of demand. What is demand? There are three terms. That is, first one is desire, want, and demand. If we have only the wish for a particular commodity, अगर हमारी केवल विश है, अगर हम चाहते हैं किसी सामान को खरीदना, तो that is only a desire. Second one is want. Want is we have the desire, and we also have the money. But if we don't go to purchase it, that is a want. And demand, when we have the money, as well as we go to the shop and we ask for the particular commodity, that is called demand. It means demand, एक विश या एक वांट, डिमांड तब डिमांड बनती है जब हमारे पास मनी है और हम शॉपकीपर के पास उसको खरीदने चले जाते हैं. दैट इज़ अ डिमांड. So this is a definition. You write the definition. After that, demand refers to the different possible quantities. I repeat, demand refers to the different possible quantities of a commodity. Different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy. When at different prices of that commodity. It means कि डिमांड रेफर करती है कॉमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ को, जो कि कंज्यूमर बाय करना चाहता है एट डिफरेंट प्राइजेस पर. तो देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट वन इज डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी. सेकेंड वन इज द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय. एंड थर्ड वन इज different possible prices of the commodity. So this is the definition. Next topic which we will study about the determinants of demand. Before we go to that topic, first we will study types of demand. There are two types of demand. First one is individual demand and the second one is market demand. First one is individual demand and market demand. Individual demand means a demand of a consumer and market demand means demand of all the consumer. So you replace this word commodity that a consumer is willing to buy. So this is a individual demand. This is the definition of individual demand. When you replace this word, a consumer demand is willing to buy, by the word all the consumers are willing to buy. So replace this word for market demand, all the consumers are willing to buy. So our definition would be now, for market demand, demand is the quantity of a commodity that all the consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. It means when there is the consumer, replace this word the consumer is with all the consumer are, for market demand, for the definition of market demand. Next topic is determinants of demand. Determinants of demands means the factors affecting the demand, individual demand. It means वो फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट करेंगे. कैसे अफेक्ट करेंगे? या तो डिमांड को बढ़ा देंगे मार्केट में
किसी भी कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि नोटबुक, जब जून का सीज़न होता है तो नोटबुक की डिमांड जो है वो घट जाती है, लेकिन जैसे ही जुलाई, एंड ऑफ द जून, नोटबुक और बुक्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो दैट इज़ डिमांड, की डिमांड जो है वो कैसे इफेक्ट करती है, कैसे बढ़ती है या घटती है। सो देयर आर 5 फैक्टर्स, 5 मेन फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, सेकेंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फोर्थ वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड फिफ्थ वन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सो फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। हमें सभी को पता है कि अगर कोई कॉमोडिटी है, कोई गुड्स है, कोई सामान है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है, इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिमांड घटेगी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस अगर किसी कॉमोडिटी का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी। अगर प्राइस घटता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्टिंग द डिमांड। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट भी रहा है। सो देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी increases, demand decreases, and vice versa. Next one is price of related goods. So there are two types of goods. First one is substitute goods and complementary goods. दो तरह के गुड होते हैं, एक सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, देर इज एग्जाम्पल ऑफ टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। दीज आर सब्सटीट्यूट गुड्स। इट मीन्स if tea is the main good, then coffee is its substitute goods. अगर कोई इंसान कॉफ़ी पीना चाहता है लेकिन कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाए तो वो टी पे डिपेंड हो जाएगा, कॉफ़ी नहीं पिएगा, फिर टी पी लेगा। तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ टी demand of tea increases. So there is direct relationship between the main good with the substitute good coffee. यहाँ पर हमने टी को मेन गुड और कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट गुड लिया है। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो टी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो कॉफ़ी नहीं पीना चाहेंगे, फिर टी पीना चाहेंगे। सो दैट इज़ अ सब्सटीट्यूट गुड्स। सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? गुड्स दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, गुड्स जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। अगर ब्लैक बोर्ड है लेकिन चॉक नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का कोई यूज़ ही नहीं है अगर चॉक नहीं है। सेम एज इफ़ देयर इज़ अ कार एंड देयर इज़ नो पेट्रोल, अगर पेट्रोल ही नहीं है तो कार का कोई यूज़ नहीं है। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स वो गुड्स जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, गुड्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। दे हैव इन्वर्स रिलेशनशिप, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स अगर पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो हम ज़्यादा कार खरीदेंगे, तो कार की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो हम कहेंगे ठीक है हम कार ही नहीं खरीदते हैं, तो कार की जो डिमांड है वो घट जाएगी। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इस तरह से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर हम बेस लें गुड्स का, तो यहाँ पे गुड्स जो हैं वो इनकम के बेस पे हम गुड्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने प्राइस के बेस पे गुड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया, ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ इनकम goods can be divided into two types. First one is normal good, second one is inferior good. Inferior goods means cheap goods, वो goods जो सस्ते होते हैं, cheap goods. अब if first we will take normal goods. Normal goods, अगर हम normal goods की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं बाइसिकल का या फिर स्कूटी का। स्कूटी का अगर इनकम बढ़ती है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम स्कूटी का डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे, हम अच्छी स्कूटी खरीदेंगे। लेकिन
अगर हमारी इनकम घटती है, अगर हमारी इनकम घटती है तो हम बेकार स्कूटी खरीदेंगे। इट मीन्स जो नॉर्मल गुड्स है उसका डिमांड जो है वो घट जाएगी। इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ये स्कूटी अच्छी है, ये महंगी है, ये सस्ती है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी फॉर नॉर्मल गुड्स। ये सस्ती है, सस्ती कब लेंगे हम? जब हमारी इनकम कम होगी। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इसकी घटेगी, अगर इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नॉर्मल गुड्स इफ इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। हम अच्छी स्कूटी खरीदना चाहेंगे, हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की स्कूटी खरीदना चाहेंगे, लेकिन अगर हमारी इनकम घटती है तो हम इन्फीरियर गुड्स खरीदेंगे। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमारी इनकम बढ़ती है, यहाँ पे इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो डिमांड घट जाएगी। हम ये ना खरीद के हम ये खरीदेंगे। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इफेक्ट करता है? अगर हमारा किसी के लिए टेस्ट है ही नहीं तो हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। अगर हमें कॉफ़ी पसंद नहीं है तो हम कॉफ़ी नहीं खरीदेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड अपने आप घट जाएगी। अगर हमें चाय पसंद नहीं है तो हम चाय नहीं खरीदेंगे, तो चाय की डिमांड अपने आप घट जाएगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दे इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट एट्सेट्रा। मतलब हमारी हैबिट ही नहीं है चाय पीने की तो घट गया। फैशन में नहीं है कोई चीज़ तो उसकी डिमांड घट जाएगी। डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस फॉर विच द कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। अगर हमारा किसी के लिए स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, प्रेफरेंस दे रहे हैं हम उसको, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इफ़ टेस्ट फॉर प्रोडक्ट इज डिक्रीजेस, अगर टेस्ट हमारा डिक्रीज होता है, हम बोर हो गए हैं चाय पी के, तो हम उसकी डिमांड को उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, अगर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में कार का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, देन वी वांट टू बाय, हम उसे खरीदना चाहते हैं, देन वी विल बाय इट इमीडिएटली, हम उसको इमीडिएटली खरीद लेंगे। और अगर हम देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में जब बजट पेश होगा तो उसमें प्राइस जो है वो घट जाएगा, तो हम कार को अभी ना खरीद के हम उसको पोस्टपोन कर देंगे खरीदने के लिए, तो डिमांड अपने आप घट जाएगी। सो इफ़ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. For example, if the price of a petrol is expected to rise in future, अगर बढ़ने वाला है, its present demand will increase, तो उसकी डिमांड जो है वो प्रेजेंट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। So students, these are the factors which affect the demand. You complete these 2 topics. First one is definition of demand and types of demand, and the second topic is factors affecting the demand. Thank you. Have a nice day.